السلام علیکم بچوں، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی دبستان دہلی کے ممتاز شعراء۔ دبستان دہلی کے ممتاز شعراء میں ہیں سب سے پہلے میر تقی میر۔ آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اردو ادب کی تاریخ۔ اردو ادب کی تاریخ میں آپ نے پڑھا فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو نثر کا آغاز و ارتقاء اور اردو شاعری کی آغاز و ارتقاء۔ اور آج ہم پڑھیں گے دبستان دہلی کے ممتاز شعراء میر تقی میر۔ تو آئیے شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے عالم پہ ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ مستند یعنی سند پایا ہوا، قابل اعتبار، یعنی سارے عالم میں، سارے دنیا پر کیا ہے، میں چھایا ہوا ہوں اور میرا کیا ہے، سند فرمایا ہوا ہے۔ میرا جو سند فرمایا ہوا ہے یہ سارے دنیا میں چھایا ہوا ہے، یعنی میری شاعری ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ میر اکبر آباد میں پیدا ہوئے مگر بعد میں دہلی چلے آئے، یہیں ان کی شاعری پروان چڑھی۔ دلی جہاں انتشار ایزی کا شکار تھی، جہاں درد و کرب تھا، جہاں کا ہر شاعر اپنے اندر سمٹ رہا تھا، میر نے اس درد کو زمانے کا درد کرب تھا اپنے ذاتی رنج و غم سے ہم آہنگ کر کے اس انداز سے پیش کیا کہ ان کی آپ بیتی جگ بیتی بن گئی۔ میر تقی میر کی غزل کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آپ بیتی جگ بیتی بن گئی۔ آپ بیتی یعنی اپنے اوپر بیتی ہوئی، اپنے اوپر جو مصیبت بیتی ہوئی تھی، جو پریشانیاں تھیں، جو انہوں نے زندگی میں پریشانیاں جھیلی تھیں، اس پر انہوں نے کیا کیا شاعری کیا، اور اس وقت جو حالات تھے ان سب کو کیا ہم آہنگ کیا، ان کو ملایا اپنے اندر، اور ان میں جو شاعری کی تو سارے لوگوں کو ایسے لگا، عام عوام کو، پڑھنے والوں کو، قاری کو ایسا لگا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں شاید میرے زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی پریشانیاں ہیں۔ تو ان کی جو آپ بیتی تھی کیا جگ بیتی بن گئی۔ میر نے اپنے درد کی اس آواز کو اپنی شاعری میں اس طرح سمویا کہ اس نے اپنے درد کی ترجمانی بھی کی اور اسے زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے آفاقی سطح پر پہنچا دیا۔ اور میر نے جو شاعری کے اپنے دور کی جو شاعری کی تو اس شاعری کو، اس وقت کی شاعری کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ زمان و مکان کے قید سے، جو زمانے میں اور مکان میں قید تھا، آزاد کر کے آفاقی سطح پر پہنچا دیا، یعنی کہ آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ میر کی آواز 18ویں صدی کے برصغیر کی روح کی آواز ہے، جس میں اس دور کے احساسات امید و بیم، خوف ورجا، آس و بیاس اور غم و الم شامل ہیں۔ اور اس وقت 18ویں صدی کی جو آواز ہے، میر کی جو شاعری ہے 18ویں صدی کی کیا ہے، آواز ہے، برصغیر کی آواز ہے، اس وقت کے پوری دنیا کی آواز ہے۔ اس دور میں جو احساسات تھے، کیونکہ اس وقت کیا ہے، جنگ کا دور تھا، سیاسی حالات بہت خراب تھے، تو انسان کے جو احساس تھے، جو امید تھا، جو خوف تھا، جو مایوسی تھی، جو غم تھے، یہ سب کیا باتیں کیا ان کی شاعری میں شامل تھیں۔ میر کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس دور کی روح کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ ذاتی غم اور زمانے کے غم نے حساس میر کو دریا بنا دیا اور ان کی شاعری کو وہ نشتریت دی جو ان کی امتیازی صفت تھی۔ اور اس وقت کی شاعری نے، میر کی شاعری نے اس دور کی کہا عکس دیا ہے۔ ان کی شاعری میں کیا ہے، اس دور کا پورا عکس ہے، اس دور کی روح کا عکس ہے۔ اور ذاتی غم اور زمانے کے غم کو انہوں نے کیا کیا، میر کو اور حساس بنا دیا۔ ان کی ذاتی غم تھے، جو زمانے کے غم تھے، میر کو اور حساس بنا دیا، اور ان کی شاعری کو کیا ہے، نشتریت دی۔ نشتر یعنی ہوتا ہے چاقو چھرا کہتے ہیں، یا ایک طرح سے کہہ دیے کہ ان کے اندر شاعری میں کیا ہے، ایک چبھن آ گیا، ایک تیکھا پن آ گیا، جو ان کی امتیازی صفت ہے۔ میر کی شاعری اپنی بعض خصوصیت کی وجہ سے اردو زبان میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترتیب و ترکیب زبان میں موسیقی پیدا کر دیتی ہے۔ اور میر کی شاعری کیا ہے، اردو زبان میں اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے، ممتاز حیثیت رکھتی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے اور الگ ہٹ کے حیثیت رکھتی ہے۔ اور الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترکیب کیا ہے، زبان میں موسیقی پیدا کر دیتی ہے، یعنی پڑھنے میں بڑا ربط معلوم ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک روانگی کے ساتھ ان کی شاعری پڑھی جا سکتی ہے۔ سادگی اور پیرایا زبان کی وجہ سے شعر کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔
इनके कलाम में सब खूबियाँ मौजूद हैं जो उर्दू के किसी दूसरे शायर के यहाँ नहीं पाई जाती। इनकी शायरी आशिकाना है लेकिन इखलाकी और हकीमाना मज़ामीन को अपने रंग में सादगी, सफाई और खूबी से अदा कर जाते हैं। इनका कलाम इनकी तबीयत व सीरत की हूबहू तस्वीर है और इनका जो कलाम है इनकी तबीयत की क्या है, हूबहू सीरत है। जैसी इनकी तबीयत है उसी तरह का वो कलाम लिखते हैं और यही वजह है कि वो असलियत और हकीकत से खाली नहीं है। और यही वजह है कि उनकी जो कलाम है, उनकी जो शायरी है, उनकी क्या तबीयत की हूबहू तस्वीर है, इसलिए क्या है ये हकीकत लगता है, ये दिखावा नहीं लगता है। दो राजकार इस्तियारात बैद अज़ क़यास मुबालगे और ख़िलाफ़ अमूर आदात से पाक है। भोंडे और बेजा तकल्लुफ़ व तसन्ना और फजूल लफवाजी का नाम नहीं है और इनके क्या है भुंडापन नहीं है। बेजा तकल्लुफ़ व तसन्ना यानी बनावट, फिजूल की बातें, फिजूल के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है। क़ल्बी वारदात और कैफियत को नहायत सादा, शस्ता और साफ ज़ुबान में ऐसे दिलकश असलूब में बयान करते हैं कि जो बात वो कहना चाहते हैं वो दिल में उतर जाती है। और इनके लिखने का तरीक़ा और अंदाज़ ऐसा है कि वो जिस बात को कहना चाहते हैं इतने खूबसूरती से पेश करते हैं कि वो पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती है। इनका कलाम बलिहाज फसाहत व रवानी सहल ममतना है। सहल ममतना कहते हैं आसान ज़बान में शायरी करने को। इनके शायर सोज़ो गुदाज और दर्द की तस्वीरें हैं। इनके ज़ख्मीम कुल्लियात में रतबे दिया बस सब कुछ है। मीर के इशार अल्फाज मुलायम, धीमे, सलेस और सादा होते हैं लेकिन इनमें गज़ब का जोश या दर्द छुपा होता है। सलासत व सादगी बेपनाह है। हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। कितने हल्के और सादा अल्फाज में इन्होंने बात कही है और कैसे दिल को लगी है कि मेरे आगे जब किसी ने तेरा नाम लिया तो हमने अपने दिल को क्या है थाम थाम लिया। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। और शाम से क्या है दिल बुझा सा रहता है, ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल क्या है मुफलिस का चिराग है जो बार बार ज़रा सा तेल होने पर क्या है कभी जलता कभी बुझता है। मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। और मेरी जो मोहब्बत में निभी है सिर्फ मेरे सलीक़े से निभी है, नहीं तो हमने तमाम उम्र क्या है नाकामियों ही से काम लिया है। ज़बान के सलासत व फसाहत के साथ पैराया बयान की दिलकशी नहायत पुर तासीर है। इनके तमाम हम असरों के कलाम में सादगी, सफाई और रोज़मर्रा की पाबंदी पाई जाती है लेकिन महज सलासत और ज़बान की फसाहत काम नहीं आ सकती जब तक कि ताजगी अदा मतलब में शगुफ्तगी और ख़्याल में बुलंदी व जिद्दत ना हो। मीर के कलाम में ये सब खूबियाँ पाई जाती हैं। फिर दर्द और तासीर तो खुदादाद है। मीर के कलाम में अखलाकी और हकीमाना इशार की भी कमी नहीं, लेकिन इखलाक हो या हिकमत, अंदरूनी कैफियत हो या बैरूनी हालत, अंदाज़ बयां वही है। नहायत मामूली और सादा अल्फाज में बड़े बड़े निकात और बुलंद मज़ामीन बेतकल्लुफ़ी से बयान कर जाते हैं। ये क्या क्या है कि अंदरूनी बातें हों या बैरूनी यानी बाहर की बातें हों, अंदाज़ बयां क्या वही है। नहायत मामूली और सादा अल्फाज में क्या है बड़ी बड़ी बातों को वो कह जाते हैं और बेतकल्लुफ़ी से बयान कर जाते हैं। इनके यहाँ सादा अल्फाज और तराकीब के पर्दे में ऐसे ऐसे बुलंद ख्यालात मिलते हैं, मसलन सरसरी तुम जहाँ से गुजरे वरना हरजा जहाने दिगर था। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखाने शकस्ता से चूर था। कहने लगा देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी कसों का सर पर गुरूर था। मीर ने कसीदे भी कहे हैं लेकिन इनमें वो तमतराक नहीं जो कसीदे की खुसूसियत है। अलबत्ता इनकी मसनवियाँ काबिल ज़िक्र हैं। मीर के रुबाइयात भी कुछ कम पुरलुत्फ नहीं। उन्होंने शिकार नामे भी लिखे हैं। इनके अलावा मुखम्मस, मुस्तज़ाद और फ़र्द वग़ैरह हैं। लेकिन मीर के असल मैदान गज़ल है और वो गज़ल के शहनशाह खुदा हैं। मीर का असल मैदान क्या है? गज़ल है और वो गज़ल के क्या हैं? शहनशाह खुदा हैं। कहा जाता है कि इंसान का तर्ज बयां इसकी सीरत का परतो होता है। ये मक़ूला मीर के कलाम पर सादिक़ आता है। कहा जाता है क्या कि इंसान का जो तर्ज बयां है उसके सीरत पर, उसको जो सीरत है
उसको जो रहने का अंदाज़ है, जो उसके दिमाग है, जो उसकी खसलत है, वो क्या है उसके लिखने में बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है कि वो क्या लिखता है और उसको सोचने और समझने का ढंग क्या है। तो ये माकूला क्या है मीर के कलाम पर सादिक आता है कि जैसे उनकी सीरत है, जैसे उनकी आदत व खसलत है, उसी तरह की वो शायरी भी करते हैं। मीर के कलाम में इनकी ज़िंदगी का हकीकी अक्स नज़र आता है। गम व अलम का अब्र स्याह इन पर हमेशा छाया रहा और यही रंग इनके कलाम से टपकता है और ये इंतहाई शायरी है। और क्या है उनकी ज़िंदगी में गम अलम यानी और मुसीबतें बहुत है और यही मुसीबत और यही गम अलम क्या है इनके कलाम से टपकता है और ये क्या है इंतहाई शायरी है, यानी शायरी की बुलंदी है। या रोए या रुलाया अपनी तो यूं ही गुजरी, क्या जिक्र हम सफ़ीरा यारान शादमा का। मीर के कलाम की एक सबसे बड़ी खुसूसियत सहल मुमतना है। सहल मुमतना हमने आपको बताया और कई बात बताया है कि इसके माने होता है आसान लफ्ज़ों में शायरी करना। इनके कलाम में अक्सर इशार ऐसे भी हैं जो सहल मुमतना की बेहतरीन मिसाल हैं। नाज के इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर के यहाँ अच्छे इशार के साथ साथ बगायत पस्त भी मौजूद है। अब यहाँ जो हमने पढ़ा नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ये बिल्कुल लग रहा है कि आसान लफ्ज़ों में बात को कह दी गई है और यही होता है सहल मुमतना, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में शायरी करना। मीर के यहाँ अच्छे इशार के साथ साथ बगायत पस्त भी मौजूद हैं, यानी कि बगावत वाली शेर भी हैं। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब इस अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, लेकिन इस पस्ती से मीर की अजमत पर कोई हर्फ नहीं आता। मीर के यहाँ इंसान दोस्ती किसी ख़ास मजहबी या सियासी मसलिक की पाबंद नहीं, ये एक वजह है, असलूब है, एक तर्ज फ़िक्र है। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इंसान के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमें सहल मत जानो, हमें आसान मत जानो। जब फलक बरसों फिरता है आसमान में, तब खाक के पर्दे से यानी ज़मीन के अंदर से एक इंसान निकलते हैं। मीर अपने कमाल से खुद वाकिफ़ थे और इन्हें इस पर नाज था और उन्होंने इसका जा बजा इजहार भी किया है। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। तो ये था मीर तक़ी मीर की ज़िंदगी के शायरी के कि मीर तक़ी मीर कैसे शायर थे और ये दबिस्तान दिल्ली के मुमताज़ शायरों में एक शायर थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आपको मीर तक़ी मीर की शायरी पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये जो है नोट्स ये BA MA में भी काम आते हैं। ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।